Hello everyone, welcome back again. In this session, you will learn about the Theodolite Survey. Now, this is a very important instrument used in civil engineering for measuring the horizontal and vertical angles. So the definition of this theodolite is, it is an surveying instrument which is used to find out the horizontal and vertical angles. It is also used for lining in, for ranging purpose, okay, for finding the deflection angles, okay, and also you can find the bearings of this theodolite. Okay, so in actual practice there are two types of the theodolite. First is transit theodolite and another is non-transit theodolite. Okay, so what is the meaning of transit, what is the meaning of non-transit, and what are the important parts of the theodolite with their function I will explain in this video. Okay, so watch this video carefully till the end so that you can get all the information regarding this theodolite. Again, in the next video we will learn 16 important definitions which will asked in the university exam papers as well as oral examination and online examinations. That will also help you. Okay, so let's see today's session, what is theodolite and what are the important parts. As I said, theodolite is an angular measuring instrument by which we can measure the horizontal and vertical angles. So here you can see the important parts. As I said, transit and non-transit. What is transit? If the telescope of the theodolite, now this is the telescope, if the telescope of the theodolite is turning or rotating 180 degree about its horizontal axis, then that type of theodolite is known as the transit theodolite. Very simple. ट्रांजिट theodolite किसे कहते हैं? अगर टेलीस्कोप मूव होता है, टर्न होता है 180 डिग्री about its horizontal axis, that is called as transit theodolite. And if it is not rotated, अगर वो fixed है, rotate नहीं होता है, then that type of theodolite is known as non-transit theodolite. Got it? Very simple definitions. But nowadays we cannot use the non-transit theodolite and it is absolute. अभी बहुत सारे theodolite जो है ना मार्केट में आ चुके हैं जिसका यूटिलाइजेशन हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन नॉन ट्रांजिट नहीं यूज़ करते, इट इज़ एब्सोल्यूट. अगेन this is called as the 20-second theodolite. Why it is called as 20-second theodolite? Because the list count of this theodolite is 20 seconds. Now what is the list count? The amount or minimum angle that can be measured by this instrument is 20 seconds. That's why it is called as the 20-second transit theodolite. Are you getting the difference? So here in actual market you can get 1 second theodolite, micro-optic theodolite, okay, having a list count of 1 second. Again 10-second theodolite is available in the market. Okay, depending upon the accuracy of the work you can use a particular type of the instrument. Okay, so if you want the greater accuracy in the work, you need to use digital theodolite or 1 second theodolite. So here theodolite is divided into three main parts. First is the leveling head, second one is the standard A-frame, and third one is the telescope. Let's see about the leveling head. Now leveling head includes two important parts. One is the base and another is the upper plate. So here base is directly attached to the tripod and upper plate, and in between them you can see this is the foot screws. Okay, so foot screws are used for a leveling purpose. Okay, when you want to set up the instrument, अगर आपको सेटअप करना है ग्राउंड के ऊपर तो लेवलिंग किससे करेंगे आप? इस फुट स्क्रूज से करेंगे. Got it? So above that you can see यहाँ पे आपको दिख रहा है, this is the spindle. ये जो आपको दिख रहा है spindle है. So here you can see, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये अपर साइड में है, दिस इज कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल सर्कल अपर क्लैंपिंग स्क्रू. अभी ये हॉरिजॉन्टल सर्कल हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है. सो अपर क्लैंपिंग स्क्रू, लोअर क्लैंपिंग स्क्रू, याद रखिए अपर क्लैंपिंग स्क्रू, लोअर क्लैंपिंग स्क्रू. ओके, अगर उसी के बाजू में, okay, adjacent to that you can see one more
bigger size, bigger diameter screw, that is called as the slow motion screw. Okay, so these are known as the clamping screw. Clamping screw means fixing screw. अगर आपको पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की जो रोटेशन है आपको फिक्स करना है, ठीक है, तो आपको ये दोनों भी टाइट करने हैं, दैट इज कॉल्ड एज द क्लैंपिंग स्क्रू. ठीक है, ये जो दोनों आपको ये धापे दिख रहा है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये जो है इनको टाइट करना है. अगर एक को हमने लूज किया तो ये क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा. ओके, सो इसकी जो कुछ फंक्शन है अपर क्लैंपिंग स्क्रू एंड लोअर क्लैंपिंग स्क्रू, ये भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो याद रखिए ये अपर क्लैंपिंग स्क्रू, ओके, स्लो मोशन स्क्रू. स्लो मोशन स्क्रू को दूसरा नाम है टेंजेंट स्क्रू. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. अनदर वन थिंग इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल. Horizontal circle is used to measure the horizontal angle. Okay, so in this horizontal circle you can get two scales. One is the main scale and another is the vernier scale. Main scale, okay, is attached to the lower plate and vernier scale is attached to the upper plate. Okay, so main scale is graduated in minutes and degrees and the reading starting from 0 degree to 360 degree. I repeat once again, the main scale is graduated in degrees and minutes. It starts with the 20 minutes. Why? It is 20 सेकंड है, 20 मिनट्स पे मेन स्केल के ऊपर रीडिंग स्टार्ट होता है एंड इट इज़ 0 डिग्री टू 360 डिग्री मेजरिंग क्लॉकवाइज. उसके ग्रेजुएशंस क्लॉकवाइज रहते हैं. इन वर्नियर स्केल देर इज 0 to 20 मिनट्स की वर्नियर स्केल होती है जिसका लिस्ट काउंट होता है 20 सेकंड. वर्नियर स्केल 20 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 2 मिनट. मेन स्केल पे कैसे होता है 20 मिनट, 40 मिनट, 1 डिग्री, 20 मिनट, 40 मिनट, 2 डिग्री. ओके, सो इन दिस वे all the main scale is graduated from 0 degree to 360 degree. Okay, so here you can see one open window that is called as the vernier A and in another side that is called as the vernier B. Okay, on vernier A you can get direct horizontal angle. Okay, value of direct horizontal angle, and in vernier B you can get more than 180 degree. You can get angle, value of angle, but it can be more than 180 degree. So you have to deduct the 180 degree from the whatever the reading you have taken. जो भी आपने रीडिंग वर्नियर बी पे लिया है उसको 180 से माइनस करना पड़ेगा और जो भी वैल्यू है उसको वर्नियर ए और वर्नियर बी की जो दो एंगल की वैल्यू आती है उसको एवरेज करना पड़ेगा जो आप डायरेक्ट एंगल मेजर करेंगे. ओके, सो अबाउ दैट ओपन विंडो है, मिरर है, इससे आप क्या करेंगे, यहाँ से आप रीडिंग रीड करेंगे. ओके, इन अबाउ दैट यू कैन सी दिस इज द मैग्नीफाइंग ग्लास. यहाँ पे एक छोटा सा आई पीस भी है जो मूवेबल है. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन रीड द रीडिंग, यू कैन रीड द रीडिंग क्लियरली. ओके, अगर आपको रीडिंग क्या करना है, क्लियरली करना है, जूम करना है, तो इससे आप इससे कर सकते हैं आप. ठीक है, सो व्हाइल यू ऑब्जर्विंग द रीडिंग, ओके, यू हैव टू यूज दिस मैग्नीफाइंग ग्लास. ओके, यू कैन यूज दिस आई पीस फॉर क्लियरिंग द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केल. Okay, so this is the standard. Okay, in above that you can see this is called as the plate bubble. Here you can see level tube. Okay, so this is the plate bubble. Okay, in plate bubble है, plate level भी उसको कहा जाता है. Okay, when you want to level the instrument you have to level the instrument with the help of by observing this level tube. Okay, one more level tube is attached to the vertical circle also. So both bubbles, both levels, जो भी लेवल है प्लेट लेवल है, ओके, वो दोनों की बबल क्या होनी चाहिए, सेंटर में आनी चाहिए जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तब. ओके, सो दिस इज अ प्लेट लेवल एंड दिस लेवल कैन बी ब्रिंगिंग द बबल इन द सेंट्रल पोजिशन बाय यूजिंग दिस फुट स्क्रूज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज standard A-frame. It is look like a A shape, that's why it is called as the standard A-frame, and it supports the vertical circle and telescope. Okay, so standard A-frame. Okay, so here most important term is known as the telescope. Now what is telescope? Okay, with the help of telescope we can sight the object, we can direct this telescope towards a particular object and we have to sight means देखना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, बाइसेक्ट करना है और जो भी रीडिंग से या लेवलिंग, जो भी लेवलिंग स्टाफ है या रेंजिंग रॉड है उसको हमको क्या है, बाइसेक्ट करना है. सो हियर टेलीस्कोप इंक्लूड्स
three important parts. First, this is, you can see, this is the eyepiece. Okay, this is objective glass, and in front of eyepiece you can see this is a diaphragm. I will show you. Okay, now this is eyepiece. Okay, this is what? Diaphragm. Now the diaphragm includes the vertical here and horizontal here, crossed each other. Okay, it also includes the stadia diaphragm. Stadia diaphragm में है, जब स्टैडिया डायफ्रागम पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में या थेडोलाइट में ऐड करते हैं, इसी इंस्ट्रूमेंट को टैक्योमीटर भी कहते हैं. ओके, इन टैक्योमीटर में वो देखेंगे हम. सो हियर दिस इज व्हाट? टेलीस्कोप. इट इंक्लूड्स थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स. फर्स्ट इज द आई पीस, diaphragm, objective glass. Now what is the function of eyepiece? To clear the image of diaphragm. Whenever you want to clear the image of diaphragm, that is the vertical here and horizontal here, okay, which is located at here, you have to keep the, when you want to clear that image, you need to use this eyepiece. How to clear that image? Just hold a white paper in front of the objective glass. इसके सामने व्हाइट पेपर आपको रखना है, एंड जस्ट मूव दिस आई पीस आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. कब तक? जब तक वो जो भी वर्टिकल हियर एंड हॉरिजॉन्टल हियर आपको क्लियर नहीं दिखता है तब तक. ओके, सो क्रॉस मार्क रहता है, उसको आपको क्लियर करना होता है. तो ये क्लियर करने के लिए, डायफ्रागम की इमेज क्लियर करने के लिए आई पीस यूज़ किया जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द ओरल एग्जामिनेशंस. Students getting confused. Okay, so what is the use of eyepiece? To clear the image of diaphragm. Just it. Now next is, here you can see one more important screw. Okay, that is called as the focusing screw. Now what is the function of focusing screw? To clear the image of object. Okay, when you bisect, when you direct the telescope, okay, you will sight the object, okay, with the help of eyepiece. You clear the image of diaphragm, and when the image of the object is looking like a blur, and that blur you need to remove. When you remove that blur, that is called as the elimination of parallax. Okay, so you need to do the focusing the objective glass. So here focusing the object by using this focusing screw. Okay, just turn it either clockwise or anti-clockwise and just observe the object इन फ्रंट ऑफ यू. जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट है उसको आपको देखना है, और ये फोकसिंग स्क्रू को सिर्फ क्या करना है, आपको टर्न करना है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. कब तक करना है? जब तक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं होता है. एक बार क्लियर हो गया तो उसको क्या करना है? स्टॉप करना है. गॉट इट? नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म्स. और यहाँ पे एक टेलीस्कोप के ऊपर थोड़े से आपको एक एंगुलर छोटे छोटे से पार्ट दिखते हैं. ये जो है ये बाइसेक्टर है. ठीक है, मतलब जब आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टेम्परेरी बाइसेक्ट करना होता है, जैसे आपने देखा होगा राइफल में एक छोटा सा एरो होता है ऊपर यू शेप का, उसी के रेफरेंस थ्रू आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट करते हैं. उसी तरह से आपको यहाँ पे एक छोटे से दिखते होंगे यहाँ पे. ठीक है, एक छोटा सा, एक यहाँ पे एक बड़ा एंगल है, यहाँ पे ऊपर छोटा एंगल है. इसके ज़रिए आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टेम्परेरी बाइसेक्ट करना है. स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आगे वाला रेंजिंग रॉड दिखता ही नहीं है, तो इस रेफरेंस के ज़रिए आपको क्या करना है, रेंजिंग रॉड पहले टेम्परेरी बाइसेक्ट करना है, और उसके बाद में आपको आईपीस में देख के वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट करना है. समझ में आया? नाउ दिस इज अबाउट द टेलीस्कोप. सिमिलरली हियर यू कैन सी दिस इज द वर्टिकल सर्कल ऑन विच वी कैन मेजर द वर्टिकल एंगल्स. अब वर्टिकल सर्कल एंड हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या फ़र्क है? जैसे मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल सर्कल इज ग्रेजुएटेड, द मेन स्केल ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल इज ग्रेजुएटेड इन क्लॉकवाइज फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, बट हियर वर्टिकल सर्कल इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. दैट मीन्स द वर्टिकल एंगल वी कैन मेजर maximum 90 degree, and its graduation is vernier C. Now here in vertical circle दो वर्नियर होते हैं, वर्नियर C, वर्नियर D. हॉरिजॉन्टल पे वर्नियर A, वर्नियर B. रिमेंबर दिस थिंग. सो हियर वर्नियर A, वर्नियर C से 0 to 90, वर्नियर D से 0 to 90, अगेन 0 to 90 एंड 0 to 90. इस तरह से ग्रेजुएशन होते हैं. वर्नियर स्केल जैसे हॉरिजॉन्टल में थी है वैसी वहीं पे होती है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड वर्टिकल सर्कल. ओके, तो मैक्सिमम कितना एंगल हम यूज़ कर सकते, मेजर कर सकते हैं? क्या हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एंगल? नहीं. एक पर्टिकुलर लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, या डायरेक्शन पे हम वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं. गॉट इट? सो हियर दिस इज द फंक्शन ऑफ वर्टिकल सर्कल. अगेन यू कैन सी दिस इज द मैग्निफाइंग ग्लासेस.
रीडिंग एग्जैक्ट रीडिंग करने के लिए ये जो है लेवल टूब यहाँ पे दिख रही है आपको फिर से, ओके, जो वर्टिकल सर्कल पे है, ओके। सो दिस इज वर्टिकल सर्कल। नाउ हियर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ये फिक्स करना है तो आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे एक सर्कुलर स्क्रू दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज द वर्टिकल सर्कल क्लैंपिंग स्क्रू। व्हेन यू टाइट दिस स्क्रू टेलीस्कोप मूवमेंट नहीं करेगा, ओके। लूज किया टेलीस्कोप क्या होगा, मूव हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ओके। सो हियर व्हेन यू टाइट रोटेशन। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जब आप इसको रिमूव करते हैं और मूवमेंट करते हैं तो वर्टिकल सर्कल की रीडिंग भी क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं, ओके। हॉरिजॉन्टल सर्कल में वैसे नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल सर्कल को कौन, यहाँ पे ये जो है ये क्लैंपिंग स्क्रू है, इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्टिकल सर्कल को मतलब क्लैंप और मूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस वर्टिकल सर्कल क्लैंपिंग स्क्रू का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट करते हैं टेम्पररी, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। और एग्जैक्ट बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसी के नीचे एक छोटा सा बिगर डायमीटर का स्क्रू है, ये जो है स्लो मोशन स्क्रू, इट इज़ वर्टिकल सर्कल स्लो मोशन स्क्रू है। मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आप बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओके, टेम्पररी इससे करेंगे और एग्जैक्ट इससे करेंगे, स्लो मोशन से, ओके। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ वर्टिकल सर्कल क्लैंपिंग स्क्रू, ओके। नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है। सो हियर यू कैन सी ये वर्टिकल सर्कल, ये अपर क्लैंपिंग स्क्रू इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए, अपर क्लैंपिंग स्क्रू, लोअर क्लैंपिंग स्क्रू। थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ मैं आपको। व्हेन यू टाइट दिस टू स्क्रूज, जब आप ये दोनों भी टाइट करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट विल नॉट रोटेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इंस्ट्रूमेंट रोटेट नहीं होगा, ओके। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इस साइड में क्या है, पॉइंट ए बाइसेक्ट करना है या 0 डिग्री सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, याद रखें फंक्शन देखिए, अपर क्लैंपिंग स्क्रू और लोअर क्लैंपिंग स्क्रू का फंक्शन देखिए। जब आप लोअर क्लैंपिंग स्क्रू लूज़ करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, लोअर क्लैंपिंग स्क्रू लूज़ करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट का जो मेन स्केल की जो रीडिंग्स है वो चेंज नहीं होगी, ओके, द रीडिंग शुड बी सेम, ओके। जब आप टाइट करते हैं एंड अब दोनों टाइट हैं, और जब अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज़ करते हैं तो रीडिंग विल बी चेंज्ड, जो भी अपर प्लेट है उतनी लूज़ हो जाएगी, नीचे का पूरा फिक्स हो जाएगा, सिर्फ रीडिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ लीजिए, व्हेन अपर क्लैंपिंग स्क्रू इज लूज रीडिंग विल बी चेंज, व्हेन बोथ टाइट इट इज़ फिक्स्ड। लोअर क्लैंपिंग स्क्रू लूज किया रीडिंग चेंज नहीं होगा, अपर क्लैंपिंग लूज किया रीडिंग चेंज होगा, ओके। सो अब जब आप 0 डिग्री सेट करते हैं वर्नियर ए पे, तो आपको क्या करना है, दोनों अनक्लैंप है, उसको दोनों क्लैंपिंग है, एक पर्टिकुलर अपर क्लैंपिंग स्क्रू को क्या करना है, लूज़ करना है। इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, इस तरह से आपको मूव करना है। अब जब तक वर्नियर ए 0 डिग्री रीड नहीं करता है टेम्पररी, तब तक आपको क्या करना है, थोड़ा सा आई ऑब्जर्वेशन करके वर्नियर ए को 0 डिग्री सेट करना है। जब वर्नियर ए पे 0 आता है तब आपको ये वर्टिकल, ये जो क्लैंपिंग स्क्रू है उसको टाइट करना है। अब समझो P एंड Q 2 पॉइंट्स है ग्राउंड के ऊपर, अब ये 0 डिग्री सेट हो गया है, स्लो मोशन स्क्रू का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट 0 डिग्री सेट करेंगे। नाउ आई नीड टू सेट द 0 डिग्री टूवर्ड्स P के ऊपर हमको क्या करना है, 0 डिग्री सेट करना है। सो आई विल रिमूव, ओके, ये जो लोअर क्लैंपिंग स्क्रू है उसको रिमूव करूँगा। अब याद रखना रीडिंग चेंज होगा। देन आई विल डायरेक्ट दिस टेलीस्कोप टूवर्ड्स P। याद रखना रीडिंग चेंज नहीं हुआ, जो भी हमने 0 डिग्री सेट किया है वही रहेगा। अब टाइट करेंगे, देखिए स्लो मोशन स्क्रू से फिर से एक बार P को देखेंगे, उसको अच्छे से बाइसेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिर से चेक करेंगे 0 डिग्री रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्या करना है आपको, Q मतलब एंगल समझो POQ हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या करना है, अपर क्लैंपिंग स्क्रू को लूज़ किया, अब रीडिंग चेंज होगा, तो क्या करना है, Q को हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट जब हो जाएगा टेम्पररी, फिर उसके बाद में अपर क्लैंपिंग स्क्रू हमको क्या करना है, टाइट करना है, ओके, एंड देन स्लो मोशन स्क्रू से फिर से एक बार बाइसेक्ट करना है।
अब यहाँ पे जो वर्नियर ए पे रीडिंग दिखेगा वो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल एंगल दिखेगा और वर्नियर बी पे 180 मोर दिखेगा। तो वर्नियर बी से 180 डिग्री माइनस करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको एवरेज करेंगे तो आपको एंगल मिलेगा APOQ। गॉट इट? समझ में आया? सिमिलरली जब आप वर्टिकल एंगल मेजर करेंगे, अभी इसको मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ, वर्टिकल एंगल मेजर करेंगे तो जब आप परफेक्ट ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, जब इंस्ट्रूमेंट पूरा का पूरा लेवल पे होगा, मतलब जब लेवल ट्यूब के अंदर जो बबल है पूरा सेंटर में रहेगा, तो आपको क्या करना है, ठीक है, वर्नियर सी को ऑब्जर्व करना है, वर्नियर डी को 0 डिग्री दोनों की तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो आपको इसके ज़रिए वो क्या करना है, 0 डिग्री सेट करना है और आपको टाइट करना है। ऑब्जर्व करेंगे 0 डिग्री है क्या देखेंगे, स्लो मोशन स्क्रू से फिर एक बार क्या करेंगे, एक ज़ेड बैक सेट करेंगे। अब आपको वर्टिकल एंगल मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट P ऊपर है और ऑब्जेक्ट Q नीचे है तो आप क्या करेंगे, पहले इनिशियल रीडिंग लेंगे, लूज़ करेंगे और P की तरफ बाइसेट करेंगे। इनिशियल 0 डिग्री था, ऊपर ले लिया, एंगल कुछ तो वैल्यू आ गई, उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या किया, Q की तरफ डाइसेक्ट करना है। अब जो भी रीडिंग है रिकॉर्ड करेंगे। अब 0 to 90 डिग्री के बीच में वो रीडिंग आएगा कोई भी। उसके बाद में क्या करना है, फिर से लूज़ करेंगे और क्या करेंगे, नीचे जाएगा। अब ये 0 to 90 डिग्री नीचे भी दिखाएगा उसी के बीच में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, POQ। तो जो हमने स्टार्टिंग में मेजर किया था एंगल, जो सेंटर लाइन पे 0 था, जो अपर साइड का रीडिंग था उसको और नीचे वाली रीडिंग को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमको एंगल वैल्यू क्या मिलेंगे, POQ। ओके, सो इन दिस वे you can measure the horizontal and vertical angle by using this theodolite. Okay, again we can use this theodolite for lining in, ranging, for measuring the deflection angle, okay, for measuring the bearing. How can measure, we will see in the next video. In the next video also you can learn the important definitions about this theodolite. ओके, सो जो आने वाला वीडियो है उसको भी आप देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर होने वाले हैं। और ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट में है, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, ओके, तो ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपको मैंने फंक्शन बताया है यही फंक्शन आपको ओरल एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए जो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो ITI में है, ठीक है, जो डिप्लोमा में है, उनको शेयर करिए ताकि उनको ओरल एग्जामिनेशन में या आने वाले ऑनलाइन एग्जामिनेशन में या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आए। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टर्म्स सीखने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें।